So good morning, dear students. Today we are again discussing on the stresses in inclined plane. This is an important part. In the last few classes, we have discussed about the different type of stresses, under which we have discussed about that how to direct stress generate normal stress, air stress, and thermal stresses and stresses in the step bar and elongation due to self weight and all we have discussed in the previous classes. Now we are going to be discuss about the stresses in the inclined plane. So it is an important part because in the real practice we have to be calculate the stresses at any plane. Every time we want we going to get the stresses in the normal plane. Okay, so we know how to calculate the stresses in the normal plane. Now we are going to be understand. So if the question is a come normal plane or parallel plane, we have calculated in parallel plane or the tangential plane stress is called as shear stress. So that one we have already discussed on. And normal stress when the applied force is perpendicular to the cross section, perpendicular to the area of cross section of the component. Okay, so now the stresses in the inclined plane. So let us see that you can see inclined plane is there. AB is the inclined plane, and the two plane is also is there, AC and BC, which is perpendicular to each other, and the plane AB is making the angle theta with the plane BC. Okay, so we can see that हम देख सकते हैं कि we have to be calculate this one. This sigma theta is normal stress on the this plane AB, and tau theta is the tangential stress on the plane AB. So we have the condition is there. So stresses in BC plane is sigma y, and stress in AB plane, sorry, AC plane is sigma x. So, and this stress must be induced due to some force, and that force is Px in x toward the in AC plane, and here the in BC plane it is that force is the Py. So as we know that, so once we have the force, so we have to be calculate the stresses in this plane. So this is the some at is an angle to the reference plane, and this is also having some angle at the reference plane. So how to be this force which is Px and Py acting, तो हम इस force को इनके along resolve करेंगे. So how can we can resolve? You can see that this is the action of the force which is acting on the plane AC. AC plane में ये वाला force act कर रहा है. इसके दो component हो गए. One is the parallel to the tau theta, another is the parallel to the sigma theta. So you can say, and both they are in should be in a perpendicular, because these are both these are the in perpendicular. तो ये perpendicular होंगे. अब you can see that how, because this one this is the parallel one. So आप क्या कर सकते हो, जो एंगल ये बना रहा होगा यहाँ से, ये देखो यहाँ बेस से अगर if you draw a line here, simply if you draw a line here, ये वाला, तो ये इसके पैरेलल हो गया BC के, तो जो एंगल ये इससे बना रहा है वही तो एंगल ये बनेगा, तो दैट इज अ थीटा. ओके, दिस एंगल इज अ थीटा. सो इसके दो कंपोनेंट हो गए. व्हाट इज द कंपोनेंट? P x cos theta and P x cos theta and P x sin theta. दो कंपोनेंट. ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपको आता है, ये बहुत पहले से पढ़ रहे हो. So next see the Py. In the Py case you can say this one, this force, आप देखिए जरा इसको. In the Py ये वाला फोर्स इसके पैरेलल है, ये देखो इसके पैरेलल है, इस वाले के पैरेलल. तो अब आप गौर से देखोगे. सो दिस, ठीक है. सो इस वाले में तो दिस एंगल, इस पर ये वाला एंगल इसका थीटा है. तो जब ये एंगल इसका थीटा है, ये एंगल के रेफरेंस में ये बना रहा है, कौन सा वाला? सिग्मा थीटा वाला. तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक पी वाई कॉस थीटा और एक पी वाई साइन थीटा. ये दोनों कंपोनेंट. अब ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स हो गया. अब कुछ नहीं करना आपको. यहाँ पर भी एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज एक फोर्स यहाँ एक्ट करेगा, पी एन, जो इस प्लेन में नॉर्मल फोर्स होगा, और एक यहाँ पर पीटी मान लो, उसको नाम रख दो टी. तो दैट इज ए टेंजेंशियल फोर्स, जिस टेंजेंशियल फोर्स के कारण इस स्ट्रेस यहाँ जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है. सो ये सिंपल अरेंजमेंट हो गया.
ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, अब अपन व्हाट वी आर गोइंग टू बी डू दैट, अब हम सिंपली एक इक्वेशन बनाएंगे। एक जो फोर्स इसके अलोंग है, मतलब सिग्मा थीटा के, तो कौन कौन से हैं, एक ये वाला पी वाई कॉस थीटा और इसका पी एक्स कॉस थीटा, ये दोनों इसके पैरेलल हैं। तो ये देखो ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इनको जोड़ देंगे। वी आर कंसीडरिंग द डॉटेड वन बिकॉज डॉटेड वन इज द रेजिस्टिव फोर्स। ओके, सो दिस एंड रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, the thing is you are getting. So you can see that is that is both are in the same plane, तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो p x sin थीटा प्लस p y cos थीटा इक्वल टू आपका ये हो जाएगा कौन सा, जो अभी हमने यहाँ लिखा था pn। ठीक है। सिमिलरली ये देखिए, ये दोनों एक डायरेक्शन हो गए, ये रेड वाला इधर और ये ब्लू एक डायरेक्शन में हो गया और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये पी एक्स कॉस थीटा जाके, चूंकि ये सेम डायरेक्शन में है, तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी वाई कॉस थीटा माइनस पी एक्स कॉस थीटा। सो लेट्स सी द इक्वेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. So you can see what I explained already to you. So how can calculate this equation? I explained to how this come here. So let's see one more things. The normal force acting on the plane AC. So my dear students, we know that the value of sigma x, if we multiply the cross section of this one, means this ऊंचाई and this thickness is a t. So AC into t into sigma x, so it will give you the force which is acting on the plane AC. Similarly, the force acting on plane BC, we calculate that is py, the how much stress is acting on that plane is sigma y and BC into T. BC into T is the cross-sectional area. So normal resisting force acting on plane AB, we can say the Pn equal to Px sin theta plus Py cos theta. How it is come, I explained you, and that how it is come, Pt is equal to Py sin theta minus Px cos theta. This बैलेंसिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स से आया, ये वाला इधर रख कर आया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो पहले इक्वेशन में देखो दोनों ये पी वाई और पी एक्स के कंपोनेंट ऐड हो गए हैं पहले में, और दूसरे में ये वाला चूंकि ये एक डायरेक्शन में है तो ये वाला जाके माइनस हो गया पी एक्स कॉस थीटा। So similar this is happening here. So if sigma theta and tau theta are the normal stresses developed on the inclined plane, so कुछ नहीं करना है आपको, just you put the value in this equation. आप अपनी सुविधा के लिए you can give number also, so equation 1 and equation 2 and equation 1 and equation 2. Equation 1 में just put the value of Pn, Px and Py. Px Py आपने ऊपर देखो ये निकाल के रखा है, Px is equal to AC into T into sigma x and Py is equal to BC into T into sigma y. And so similarly you can write that this PT also. PT क्या है, सॉरी PN, पहले हम PN को ले रहे हैं ना, तो PN को हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं उस PN मतलब नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा थीटा एंड क्रॉस सेक्शन इज A and thickness, AB and thickness. So AB and thickness and just अब इसकी वैल्यू रख दो, पी वाई की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से ये वाली, ये देखो रख दी मैंने, ये साइन इसके साथ है तो आ गया, और पी एक्स की वैल्यू एंड पी वाई की वैल्यू ऑल्सो हम रख सकते हैं, इस यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए पी वाई की वैल्यू यहाँ, पी वाई की वैल्यू ये इसके में जगह पे ये रखेंगे, इसमें ये पी वाई की वैल्यू एग्जैक्टली वहां से उठाया। देन अब क्या करने वाले, देखो यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, ये टी कॉमन हो गया और इसके टी से कैंसिल हो गया। अब इस ए बी को इस ए सी पे डिवाइड कर देंगे, इधर बी सी पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया था, और लास्ट उसमें हमने ये डिस्कशन वी ऑलरेडी डन, हमने ये वाला डिस्कशन किया था कि ये देख लो बेटा, ये अगर थीटा है, ये ए बी और सी है, तो आप देखिए AC इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में AC अपन AB इस क्या होगा, देखो AC इज व्हाट, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड साइन थीटा। सो साइन थीटा, और पहले से जो साइन थीटा है तो वो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पर BC अपन AB,
आर यू गेटिंग दैट BC अपन AB? यहाँ चलते हैं, BC का मतलब क्या हो जाए, बेस हो गया। सो बेस अपन AB is the hypotenuse, that is called the cos. So cos into cos square theta, यहाँ तक पहुंच गए। सो सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए अब आसान बनाते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स और ये हो जाएगा सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, और यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ भी कॉस 2 थीटा है, दोनों देखो ये कॉमन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये इक्वेशन फाइनल जो आपको मिली, दैट इज इक्वेशन टू कैलकुलेट द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, ये आपको बहुत काम आने वाली है। सो ये सारा ये पहला केस हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, वी हैव टू बी कैलकुलेट द shear force or that tangential force acting on the inclined plane AB पे। वो सिंपल ये इक्वेशन तुमने बना के रखी है। इसी इक्वेशन में PT P बाई PX की वैल्यू रख देंगे सिंपली। बहुत आसान है, हम यहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू। देखिए क्या करने वाले हैं, उसी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। PT का मतलब हो गया टाउ थीटा AB, टाउ थीटा AB into T is the thickness of that। Similarly यहाँ PY की वैल्यू रख देंगे। आप देखो PY और PX की वैल्यू, तो PY की जगह में होगा सिग्मा बाई BC इंटू 2 साइन थीटा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स AC इंटू T इंटू कॉस थीटा। ये वाला सिंपल उस इक्वेशन में PY PX की वैल्यू रखी है जो पहले हमने निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, T यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ का T है कैंसिल हो जाएगा। देन अगेन AB को BC से डिवाइड करेंगे और AC से डिवाइड करेंगे। और अगर आपको वो वाला ट्रायंगल याद होगा तो आप आसानी से फिर से मैं बना देता हूँ, गलती से मेरे से इरेज हो गया, ठीक है। सो ऐसे था A B एंड C, ये तो थीटा। सो वही चीज है BC अपन AB। अब ध्यान देखिए, देखो BC इज द बेस, AC इज द और AB इज द हाइपोटेनस, और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस होता है, और AC अपन AB, AC जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन साइन होता है। तो यहाँ हो गया कॉस थीटा साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया, दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ पर एक स्टेप हमने जानबूझ के हटा दी है, में आप स्टेप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय माइनस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन गया, ठीक है। साइन थीटा पर कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा बाई 2। मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो ये वाला यहाँ से आया साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो चूंकि यहाँ पहले ये 2 नहीं है तो ये इधर आ जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन थीटा। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। तो अब नेक्स्ट केस में हम चलते हैं, जहाँ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है नेक्स्ट केस, बिकॉज कि उस केस में नाउ वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेट द normal and shear stress on inclined plane if the both perpendicular plane are subjected to normal stress as well as shear stress। ठीक है, तो एक चीज, एक टर्म, ये इक्वेशन अब नेक्स्ट टाइम भी यही आने वाली है, यहाँ पर एक टर्म जुड़ेगी,
शेयर स्ट्रेस की, ऐसे पहले वाले में सेम होने वाला है। लेट्स सी, लेट डिस्कस दैट, हम उसको डिस्कस करते हैं। सो सेम थिंग व्हाट वी हैव डन in the first one, same thing we are going to do that, but one term is increase, एक टर्म बढ़ जाएगी। so let's just, तो आप उसी को पिक करो, उस टर्म को पिक करो कि वो कैसे बढ़ रही है। so same thing we are consider inclined in AB having this AB, that थिकनेस किसने, इसकी भी टी है, और ये BC और AC आर परपेंडिकुलर एंड AC आर मेकिंग द एंगल थीटा फ्रॉम द BC। सो ये डायग्राम एग्जैक्टली वही डायग्राम है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक शेयर स्ट्रेस लगाया प्लेन AC पे और प्लेन BC पे। शेयर स्ट्रेस हमेशा, जहां पर मैं एक चीज बताना आपको बता देता हूँ, शेयर स्ट्रेस वेयर इट इज एक्टिंग, मान लो ये प्लेन है, ये वाला ना, तो ये एक एलिमेंट है, अगर शेयर स्ट्रेस यहाँ एक्ट कर रहा है तो इसका अपोजिट ऑटोमेटिकली यहाँ एक्ट करेगा, और जो कि सेम मैग्नीट्यूड का हो, वो अलग नहीं होने वाला। और ठीक है, और एक इधर एक्ट करने लगेगा और एक ये पूरा जोड़े में चलता है, तो एक ये हो गया, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, तो यही चीज है। सो यहाँ लग रहा है, सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ एंड दिस टाउ विल बी सेम होगा, ठीक है, यू कैन सी दिस। सो अब देखो चेंज क्या होने वाला, एक चीज चेंज हो रही है। एक यहाँ पहले तो px cos थीटा था और px sin थीटा था, यहाँ पर एक fx वैल्यू आ रही है और यहाँ पर एक fy वैल्यू एड हो रही है, और सारा आपका रेजोल्यूशन सेम है। वो जो हम इक्वेशन बनाए थे, इसको और इसको ऐड करके वो वाली, और इसको और ये वाली को माइनस करके बनाए थे, वो सब सेम है, सिर्फ एक टर्म ऐड हुआ है, दैट इज fx एंड fy। तो चलो समझते हैं कि हाउ fx एंड fy केम इन द पिक्चर, वो पिक्चर में कैसे आया, ठीक है। तो अपन समझते हैं उसके बारे में कैसे आया। सो हमने सिंपल एक चीज कंसेप्ट अडॉप्ट किया कि ये जो एस्टाउ इस प्लेन BC में लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसको शेयर फोर्स होगा, और उस शेयर फोर्स जो यहाँ लग रहा है BC प्लेन में, देखो जरा BC प्लेन में जो फोर्स लग रहा है शेयर फोर्स, उसको मैंने बोला fx, और ये इस प्लेन में जो एक्ट कर रहा है शेयर फोर्स, वो उसी शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस टाउ पैदा हुआ। सो इसको हम करते हैं बाय। ऐसा क्यों किया, इसलिए माना कि देखो कितना ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये मान लिया कि जो प्लेन BC पे शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, चूंकि वो एक्स डायरेक्शन में है, चूंकि वो एक्स डायरेक्शन में है, जो प्लेन BC में एक्ट कर रहा है वो देखो इसका डायरेक्शन एक्स की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए उसको नाम fx दे दिया। और चूंकि ये AC प्लेन में जो एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन बाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए fy दे दिया। क्योंकि ये fx एक फोर्स है, यहाँ पर px तो पहले से था ही, तो ये एक डायरेक्शन वाले हैं, तो हम इनको यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब जब ये दोनों फोर्स है तो इन दोनों का साथ में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होगा, ये हमने रिजोल्यूशन निकाल दिया। सिमिलरली व्हाट वी डिड हियर, यहाँ पर py तो पहले मिल गया था, हमको देख लिया था, py तो था ही, जो जिसके कारण सिग्मा थीटा प्रोड्यूस हो रहा है। then now this the shear force which is acting on the plane AC, opposite हो रहा है यहाँ, acting on a plane AB, the direction is toward the PY, तो हम उन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आएगा। अब देखो इक्वेशन वैसे ही जैसे हमने बनाई है वही बनेगी, सबकी सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू चेंज होगी। px को हम py को टाउ के टर्म में लिखेंगे, टाउ जैसे हमने लिखा px, तो px इज एक्टिंग ऑन प्लेन BC, तो BC इंटू टाउ BC इंटू टी होगा, और py इज एक्टिंग ऑन प्लेन AC, तो टाउ टी AC इंटू टी हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा समझना है, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो लेट्स डिस्कस, लेट्स सॉल्व मेकिंग द इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ दिस px py और fn और fx, उसको हम देखते हैं, बहुत आसान हो जाने वाला है। ये देखो समझो यहाँ से सिंपली व्हाट वी हैव डन, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेन BC आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, अपन बना लेते हैं छोटा सा इधर, ठीक है। अब
छोटा सा एक डायग्राम यहाँ से हम बना ही लेते हैं। तो इस बार अच्छे बना, चल भाई इससे अच्छा नहीं बना सकता माउस से, ठीक है। सो दिस इज द ए, ये बी, ये सी, ये एंगल थीटा था, ये इंक्लाइन प्लेन था। तो आप समझो यही था, वो 3D था वहां, 3D अब यहाँ क्या बनाऊंगा, इसे ना बनेगा, ऐसा था, ठीक है। और यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, चलो ठीक है, अब इससे अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब क्या था, पहला पी वाई कहाँ है, पी नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेन बीसी, प्लेन बीसी में यहाँ था नॉर्मल फोर्स पी वाई, और यहाँ था पी एक्स। चलिए, सो पी वाई क्या हो जाएगा, पी वाई इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा स्ट्रेस हुआ था जनरेट, तो सिग्मा इंटू बी सी इंटू थिकनेस, एंड एफ एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स हमने जो यहाँ लग रहा था उसी को एफ एक्स बोला था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा था ये शेयर वाला यहाँ, तो ये हो जाएगा एफ एक्स टाउ इंटू बी सी इंटू टी, एंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सी, इधर स्ट्रेस सिग्मा एक्स था ए सी इंटू टी, एंड द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्लेन ए सी, इस प्लेन ए सी में जो लग रहा था उसका नाम हमने लग दिया एफ वाई, सो इट्स बिकम द टाउ ए सी इंटू टी। अब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो गया, टोटल वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी निकाला था जितना इस डायरेक्शन में लगने वाले, दैट इज कॉल्ड पी एक्स प्लस एफ एक्स, और इधर की नीचे की तरफ हो जाएगा पी वाई प्लस एफ वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वही इक्वेशंस जो हमने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है सर हेलो, सर एक यस, डाउट है, सर डाउट है सर, BC इंटू टी सर कैसे आया, वो एरिया निकल के आया क्या? क्या बी सी इंटू टी इज द थिकनेस हो गई इसकी, और बी सी तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं हुआ इसका, इस प्लेन का, दिस इज द बी सी, दिस इज ए बी सी। अच्छा मैं उस डायग्राम में लेके चलता हूँ, यहाँ, तो BC ये इसकी लेंथ हो गई, और वी नो द थिकनेस ऑफ दैट, तो ये एरिया हो गया, इसी एरिया में तो ऐड कर रहा था, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया, सिमिलरली यहाँ और सिमिलरली यहाँ यही किया हुआ है, ठीक है। सो और कुछ और से स्ट्रेस जिस जिस पर्टिकुलर एरिया में लगा रहे हैं उसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो अब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स और टोटल वर्टिकल फोर्स निकाल लिया। सो अब देखिए जरा यहाँ पास, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल वही फंडा, टोटल नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स, हर जो पहले इक्वेशन बनाई उसी में हमने यहाँ पर ये बस एक टर्म आ गया है एफ एक्स और यहाँ पर एफ वाई, और इक्वेशन इज सेम, और सिमिलरली टेंजेंशियल वाली भी सेम इक्वेशंस है जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था, सिर्फ ये दोनों टर्म ऐड हो गए हैं। अब इन सब की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, इन दोनों इक्वेशन में वी आर गोइंग टू पुट द ऑल द रिस्पेक्टिव वैल्यू। तो देखिए अब हमको सिंपल हमने क्या किया, देखिए जरा समझिए, हमने उस इक्वेशन पी एन पी वाई एफ एफ वाई कॉस थीटा प्लस पी एक्स पी वाई साइन थीटा में, अब इसमें फिर सब में टी होगा, सारे टी निकाल के काट दिया, ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा बी सी अपान ए बी, ये ए सी अपान ए बी और ए सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, चार टर्म हो गए। चारों टर्म से इस वाले ट्राइंगल से फिर से देखेंगे बी सी, सो बी सी इज द बेस, और हाइपोटेनस मतलब कॉस, तो पहला टर्म हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा एसी अपान ए बी हो गया है, तो ये साइन होता है, तो ये हो जाएगा टाउ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये एसी अपान ए बी, एसी अपान ए बी आप देखिए जरा, ये परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनस दैट इज साइन, तो साइन एंड साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ टाउ साइन थीटा कॉस थीटा, यू कैन सी दैट। अब देखिए यहाँ पर टाउ साइन थीटा कॉस थीटा या टाउ साइन थीटा कॉस थीटा, इसको जोड़ दोगे आप तो इट्स बिकम 2 टाउ साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर वही जो हमने पहले किया था कॉस स्क्वायर को ब्रेक करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू यहाँ साइन 2 थीटा को ब्रेक करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसको फिर रीअरेंज फिर सॉल्व करेंगे, अब हमारे को मिलने वाला है द सेम वैल्यू व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन द लास्ट
केस सिग्मा y प्लस सिग्मा x बाई 2 सिग्मा y माइनस सिग्मा x बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा, और दिस टर्म इस देखो जरा 2 टाउ साइन थीटा cos थीटा को आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा। तो फाइनल आपका एक्सप्रेशन ये आप याद रखिए, बहुत आसान है, पढ़ने वाले को नहीं भी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट रिमेम्बर दिस। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर शेयर स्ट्रेस दिया है तो आप यहाँ लगाइए, नहीं दिया तो जीरो मानिए, तो ऑटोमेटिक दिस टर्म विल बी जीरो, और ये वाला तो कॉमन ही है दोनों में। तो दिस इज द सिंपल थिंग यू कैन रिमेम्बर। ओके, आप कर सकते हो। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू बी डू विद द सेकेंड केस जो हमारा है, उसमें अपन देखेंगे उसी, देखो वही सेम, कुछ नहीं है इसमें, तो यार डूइंग द वही इक्वेशन उठाया, पी वाई एफ बाई पी एक्स एफ एक्स की वैल्यू देखो रख दी हमने, रेस्पेक्टिव वैल्यू रख दी, फिर टी कॉमन लेंगे, टी कैंसिल होगा, फिर इस सारे टर्म को बीसी को ए से डिवाइड करेंगे, एसी को ए से डिवाइड करेंगे, एसी को ए से डिवाइड, बीसी को ए से डिवाइड करेंगे, फिर ट्राइंगल में जाएंगे, बीसी अपन एसी जो है कॉस थीटा होता है, एसी अपन एबी जो हो गया वहां पर साइन थीटा हो गया, ये भी साइन हो गया, ये भी कॉस हो गया। फिर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करने के बाद ये साइन थीटा, ये देखो साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, और ये टाउ स्क्वायर थीटा। तो सबसे ये देखो साइन टाउ टाउ वाला ढूंढ लो, कहाँ है टाउ का ये टर्म है, तो ये हो गया टाउ कॉस थीटा, देखिए जरा टाउ कॉस थीटा, और एक ये है टाउ साइन थीटा का टर्म, ठीक है, ये वाला। और हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के जो टर्म है, ये देखो, तो इसको कॉमन लोगे तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है। इस तरह से हम इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक जो है यहाँ पर एक गड़बड़ मेरे को दिख रहा है, दिस शुड बी अ माइनस साइन, ये देखो ये माइनस, देखो यहाँ माइनस है ना, इस शुड बी माइनस, यहाँ पर भी आएगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है, ठीक है, इसलिए हमने माइनस को साइन ले लिया, बाहर लिया, तो देखो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा। और वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो सिंपली हम ये दोनों रिलेशन नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के जो रिलेशन है इंक्लाइंड प्लेन में, ये हमको एज इट इज याद रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अदरवाइज फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है न्यूमेरिकल्स, यहाँ से एक कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, अपन देख लेते हैं, समझते हैं इसको। देखो वैसे ही डायग्राम आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है, the stresses at the point is shown in the figure, प्लेन AC, देखिए प्लेन AC में दिया है कि सिग्मा एक्स माइनस 60 मेगा पास्कल, सिग्मा एक्स माइनस 60 मेगा पास्कल दिया है, तो आप माइनस मतलब कंप्रेसिव दिया है, कंप्रेशन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा के लिख दिया, बाहर की तरफ एरो बना दिया, या एरो अंदर की तरफ कर दो तो माइनस हट जाएगा, तो ठीक सर सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी है, इस प्लेन एसी पे भी टाउ दिया है, टाउ इसकी वैल्यू दिया है 30 मेगा पास्कल, है ना। सिमिलरली प्लेन बीसी पे सिग्मा वाई इक्वल टू 100 मेगा पास्कल एंड टाउ इज द 30, मैंने बोला टाउ हमेशा सेम ही रहेगा। डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन एबी व्हिच इज मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखो सारी चीज तो दिया है, अब आप ये इक्वेशन रख दो, ये वाली इक्वेशन याद है अगर आपको, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा 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 एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा टाउ साइन 2 थीटा, इसमें आप सारी वैल्यू रख दो। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू देखो माइनस 60 हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन सॉल्व किया है इसी कंडीशन पे जैसा सॉल्व किया है जैसा ये दिया हुआ है, तो हमको इसलिए यहाँ पर उसको टेंशन में करके बाहर की तरफ करके यहाँ माइनस साइन लगाया, और एज इट इज माइनस साइन यहाँ पर उसको। अब देखिए सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस साइन के साथ रखी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको हमने 30 मेगा पास्कल इसकी वैल्यू है, तो हमने इसको सॉल्व किया, और जो आंसर आएगा सारा वो भी मेगा पास्कल में ही आने वाला है, बिकॉज कि वी हैव
put all the value in the megapascal. Okay, so देखो we have solved the normal stress acting on this inclined plane AB. Similarly, you can use the formula for the ये वाला जो act करेगा इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा थीटा नॉर्मल, और इधर होगा टाउ वाला टाउ थीटा। तो टाउ थीटा का भी सिंपल फॉर्मूला वी कैन यूज इट। ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, सिग्मा y माइनस सिग्मा x बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। सारी वैल्यू रख देते हैं, 100 माइनस माइनस प्लस 60 था तो बाई 2 साइन एंगल इस 30 था तो 2 है तो 60 हो जाएगा। यहाँ भी 30 की जगह 2 टाइम्स 60 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर दीजिए। So we have got the 54.28 megapascal. This is the shear force acting on the inclined plane. So this is the basically the how the calculation of the stress which is acting on inclined plane. We discussed two cases. One, if the perpendicular plane subjected to shear stress, and another is the without shear stress. Relation हमको मिल गया है, they have these relations. हम इसको हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। So this is all about today class. Thank you so much for listening, for being here.